मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं। वो पल आ चुका है जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात का श्रद्धा और विश्वास भारतीय संस्कृति का उज्जवल प्रतीक श्याम स्टील के इस नए प्लांट के प्रांगण में प्रज्वलित हुआ है। दोनों तालियों के साथ हम अवसर के साक्षी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के सामने से दीप प्रज्वलित नहीं देखा होगा तो जब भूमि पूजन के लिए किसी मुस्लिम प्रांत के भूमि में धरती पर बैठकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्य को संपन्न करवा रहा हो। फाउंडेशन डे सेरेमनी के स्टोन कार्ड इनॉग्रेशन में सबकी नजरें विकास करने की तरफ हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ हो। मैं मेरा दिल से पेरियार फैमिली सैक्सपी का बोर्ड मेंबर्स और जो उद्योगपति इन्वेस्टर इस प्लान को खड़ा किया है, सबको मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से मेरा दिल से वंदन करता हूं, आभार प्रकट। आपका का सरकार है, 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। LNT ने मीटिंग किया, लर्सन एंड टूब्रो, उन्होंने यह बड़ा प्लान लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो महारानी जी का साथ उन्होंने मुझे भेज, उन्होंने सेक्रेटरीट में मेरा साथ बात कर लिया और ताजपुर में सीपोर्ट नहीं होगा, वहां सरकार का पास जमीन नहीं है। सरकार का पास 1700 एकड़ जमीन है दादन पात्रोभाड़ में, वहां सीपोर्ट हो रहा है। अदानी ग्रुप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर। দাদা সামনেটা ছেড়ে দিন, দাদা সামনেটা ছেড়ে দিন, সামনেটা ছেড়ে দিন। কোশ্চেন থাকলে বলো, জিজ্ঞেস করো। Honorable Chief Minister, see for last few decades no industrialization. সামনে দেখুন, বাংলার মানুষ আমাদের উপর ভরসা রেখেছে।
তাই জন্য তো এত বড় পরিবর্তন এসেছে, আর সে ভরসা আমরা ভাঙবো না। আগের সরকারের মতো বা তার আগের সরকারের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতি বছর সেগুলোকে ভাঙা, ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে, এটা আমরা করবো না। দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন কথা কম কাজ বেশি, তা আমরা সেটাই করছি। 60 দিন আমাদের বয়স, তার মধ্যে 3টে বিরাট বিরাট 600 লাখ, আজকে 1500, আর আমুল করছে 700। এটা জাস্ট টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। গাড়ি এখনো চলেনি, গাড়িটা শুধু স্টার্ট দিয়ে দেখুন কি হবে। তো সেটা তো ফেরা উচিত তো নাকি, হ্যাঁ, শিল্প ব্যবসা, তো সেটাই যদি সেই কাজটাই আমরা করছি। আপনারা সকলে মিলে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হেল্প করুন, সহযোগিতা করুন, এটাই আমরা চাইছি, আর কিছু না। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিযায়ী শ্রমিক তারাও কিন্তু দেশে ফেরার জন্য, অর্থাৎ রাজ্যে ফেরার জন্য, তো রাজ্যে থাকতে পারলে, বাড়ির ভাত খেতে পারলে, মা বাবার সঙ্গে থাকতে পারলে, স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারলে लॉकडाउन से कोई भी आए, ये हमेशा अटूट बना। तो घर रहे हमेशा खुश। like what is your expectation from what is একটু কথা তো আরে ভাই কথা তো বলতে দাও, তুমি আগে দেখো, যদি অসুবিধা হয় তখন বলবে, আমরা কেটে দেবো। তার মধ্যে আমরা তো করি না, সেটা তো অসুবিধা হয় না। What is your feeling that after hearing the investment of 15,000 crores first time with Sham Steel and government of West Bengal, what is your expectation more from West Bengal? 15,000 crore investment is only a first start. We are actually focusing a lot on other ancillary industries also. So 5,000 crores from that is on defense, real estate and ancillary industries. We expect it to grow a lot. Our expectations from the government are largely removal of the Land Ceiling Act and favorable investment policy so that we can invest more in Bengal. Like what is your love? Why everything is as at Durgapur, Asansol? Why not in South Bengal? Why not in Dakhin Chowbish Pargana? What is the main likings for you, towards you, that everything is stick to Durgapur itself? It's not Because- a question related to defense, but generally the infrastructure over the past few years has been developed here. We want the infrastructure to develop more in South Bengal, and we would love to invest in South Bengal. Okay. And what is your good name? Raghav Bedi. Thank you. जाबो, ये जो 15,000 करोड़ का एक बिजनेस आपका पास आया है, लेकिन सब कुछ आ रहा है दुर्गापुर आसानसोल में। जो आदमी लोग वेस्ट बंगाल में, दक्षिण 24 परगना में रहता है, उत्तर 24 परगना में रहता है, वो लोग बोलता है इतना दूर कैसे जाए, हम लोग तो परिचय हो गया। तो ये लोगों के लिए आपका क्या प्रयास है? जैसे ये कंपनी हावड़ा से स्थित हुआ था, तो आप लोग की भी हावड़ा में आ रहा है? देखिए, हावड़ा में हमारी प्लांट ऑलरेडी चल रही है। जैसे 70 साल पुरानी प्लांट हमारी हावड़ा में चल रही है, आप देखेंगे तो वहाँ और कोई यूनिट नहीं चलती है, बट हमारी प्लांट वहाँ चलती है। वो हमारे लिए सेंटिमेंटल वैल्यू है, तो वहाँ चलाते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहा कि भाई दुर्गापुर में, आसनसोल में इन्वेस्टमेंट की, इसमें देखिए कई सारे कारण हैं। एक तो है कि हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी यहीं पे है। दूसरा आप देखेंगे तो स्टील में बनाने के लिए जो एक मेजर रॉ मटेरियल है वो कोयला, वो कोयला का जो बेल्ट है वो यहाँ रानीगंज में है। तो कोयला के पास होने के लिए एक बहुत बड़ा स्टील में एक नेसेसिटी एंड एडवांटेज होती है, जिसके कारण कि हम प्रेफर करते हैं कि हम कोयले बेल्ट के पास हों। तो इस कारण बोल के, और दूसरा क्या है कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना हुआ है। पूरा दुर्गापुर बेल्ट है, यहाँ पे हमको वर्कर, स्टाफ, हमको टेक्नोलॉजी सप्लायर, कंसल्टेंट सारे इस बेल्ट में हैं। तो स्टील की कंपनी आती है तो प्रैक्टिकली उसको इस बेल्ट में एक्सपेंड करना पड़ता है। बाकी जो रहा बाहर की बात, हमारी पूरी प्रयास रहती है कि हम यहाँ के लोग को भी लें, बंगाल से और भी दूसरी जगहों से भी लोगों को लें। तो ये हमारी कंटिन्यूअस एफर्ट रहती है, इसमें हम आगे बढ़ते भी रहते हैं।